जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवः तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतिः वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जासक्ततत्त्वे च जगतिं बौद्धानां बुद्धरूपमृषभजति वरो जैनसिद्धान्तसारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहरं श्रीनीलशैलाधिनाथो। भगवान श्री श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानक श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभुंकर रीति नीति लीला आपण माने देखुछंती। प्रातःकाल समय चारिआडे गोटे शांत परिवेश श्रीक्षेत्र रे कोहला पाग रही। वर्षा बंद थिले मध्य कोहला पाग अछि। प्रातः काल पतित पावन दर्शन आपण माने करुछंती। सिंहद्वार चलचंचल अरुण स्तंभरे भगवान अरुण जोड़हस्त मुद्रारे महाप्रभुंकर श्रीमंदिर को चाही बसिछंती। आ गोटे पार्श्व भक्त मान अपेक्षा करचंती केतेबेले तांको छड़ा जीवो से महाप्रभु को दर्शन करिवे। चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण कहले अत्युक्त हेब नाही। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते विविध लीला मध्यरे महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे प्रत्येक समय रे प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर रीतिनीति होची स्वतंत्र। कारण दैनंदिन नीति सहित अनेक होचंती महाप्रभुंकर जदि यात्रा नथिले मध्य सामान्य भाव रे नीतिर परिवर्तन थाए। केतेबेले रे नक्षत्र वंदापना, केतेबेले रे एकादशी, केतेबेले रे महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव में कौन सी विजय ठाकुर मानकर थांती। ये सब लीला गुड़िक हूँ श्रीमंदिर रे स्वतंत्र। प्रातः काल महाप्रभु को मध्य किछि भक्त दर्शन कर सारे, दर्शन कर प्रत्यावर्तन कले। आउ किछि भक्त माने महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करबा पाई अपेक्षा करचंती। चारिपटर द्वार रे प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिवे। गोटे शांत परिवेशर समय वास्तव में महाप्रभु जे कि अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल से अपार करुणा सिंधु जहाँकर दर्शन कले आमे जीवन जंजाल उद्धार हवा। कारण ए संसार एभली गोटे स्थान न सुखाय कदाचनम
ଏଠି ସୁଖ କେତେବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ସୁଖ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସଂସାର ଦୁଃଖାୟ ନ ସୁଖାୟ କଦାଚନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖର କାରଣ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସେ ସୁଖ ନୁହଁ, ତାହାର ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯେତିକି ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ ତାର ଚତୁର୍ଗୁଣା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯାଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରୁ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କଲେଣି, କିଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନକୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଏ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଛନ୍ତି ରହି, ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ସଦା ଜାଗ୍ରତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେଇ ବାଣୀରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାତଃକାଳ ଅଧିବେଶନର କଥାମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶେଷଦେବ ସାହୁ ମହୋଦୟ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ମନା ଭବମଭକ୍ତୋ ମଜ୍ଜାଜି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ଯୁକ୍ତୈବ ମାତ୍ମାନଂ ମତ୍ପରାୟଣମ୍। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ହେଉଛି ଉପାଦେୟ। ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଜାଣି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଅଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମନ୍ମନା ଭବମଭକ୍ତୋ ମଜ୍ଜାଜି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ଯୁକ୍ତୈବ ମାତ୍ମାନଂ ମତ୍ପରାୟଣ। ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ। ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମଗ୍ର ମାନବକୁ ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ପୂଜନ କର, କାରଣ ମୋର ଆରାଧନା କର, ମୋର ପୂଜନ କର, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଇ ମୋର ପରାୟଣ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଏ କଥାଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ, କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ବିବିଧ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ଅର୍ଥ ଆହୁରି ବାହାରିବ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଷ୍ୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ମନ୍ମନା ଭକ୍ତୋ ମଜ୍ଜାଜି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ଯୁକ୍ତୈବ ମାତ୍ମାନଂ ମତ୍ପରାୟଣମ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତମ ମନକୁ ମୋ ସ୍ୱରୂପ କରି ନିଅ, ସପ୍ରେମ ଭଜନ କର, ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ଅଛି ମନେକରି ମୋତେ ହିଁ ନମସ୍କାର କର। ଯିଏ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଜନକାରୀ। କେବଳ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ
मो स्वरूप लाभ करिपारिब। मु मोर अंतरर कथा तुमको कहली, जो रहस्य को मु अन्य समस्त पाखरे गोपन रखी आसी ताकू लाभ करी तुम्हें भी सुख स्वरूप हो जाओ, एक कथा अर्जुन को कहते। से श्यामल परम ब्रह्म तथा भक्त गणों मनोरथर कल्पवृक्ष श्रीकृष्ण अर्जुन को जहाँ जहाँ कहले, संजय धृतराष्ट्र को से सब वर्णना करते। महिषी पानी भितर निज देह को बुड़े रखि थाए, से भली धृतराष्ट्र संजय को कथा सुनी नीरव बसी रही। संजय मन मन कहले, अमृतर वर्षा हो गला, अथच धृतराष्ट्र मन तो जाई अन्यठी, अमृत कौन तांको भल लागिबो। पुणी मन मन भाविले, से होचंती मोर अन्नदाता, तांको प्रति दोषारोप कले मोर बाणी कलंकित हो पड़िबो। किंतु कौन बा करा जीवो, धृतराष्ट्रंकर स्वभाव तो सेया। एक कथा भी संजय भाबुची, जाऊ मोर बड़ भाग्य, मुनिश्रेष्ठ व्यासदेव एक कथा धृतराष्ट्र को कहबा पाई मते नियुक्त करिसेंती। एक कथा कहू कहू संजय मन में एभली सात्विक भाव उदय है जे से निज को संभाली पारिले नाही। कारण संजय सबू तांकर दूरदृष्टि थिला, से सब देखुथिले, देखिक जहाँ होउची युद्ध क्षेत्र में ता ही होउचंती कहउचंती धृतराष्ट्र को। तेनु अर्जुन को भगवान जहाँ सब कहउचंती से कथा मध्य सी जानुची। तार भितर सेतेबेले से आत्मसंतोष लाभ कलानी, किंतु जेहेतु धृतराष्ट्रंकर अन्नरे प्रतिपालित होउची, से नीरव रही। तेणु कथा कहू कहू संजय मन में एभली सात्विक भाव उदय है, से निजको संभाली पारिले नाही। चित्त स्थिर हो पड़ा, आपात मस्तक रोमांचित हो पड़ा, अर्ध निर्मिलित चक्षुरु आनंदाश्रु निर्गत हो लगिला। सुखर तरंगरे हृदय कंपी उठिला, लोम कूपरु निर्मल स्वेद बिंदु झरी देह सारा छाईगला। मनोहला जेपरी संजय देह मुक्तावरण हो पड़ी। श्रीकृष्ण को बाणी तांको कर्णरे प्रवेश करने मात्रे से अश्रुमोचन करने को लगिले। देहरु झाल पोछू पोछू धृतराष्ट्र को कहले, एबे सुन, निवृत्ति दास ज्ञान देव तांकर श्रोता मान को कहले, यापर श्रीकृष्ण अर्जुन को विभूतिर स्थान देखाई देवे। तेणु विशेष भाव रे ये जो श्लोकटी आम आवृत्ति कले, राजविद्या राज को यह जोगर ये हूँ अंतिम श्लोक। से भगवान कहले, मनमना भवमभगतो मज्जाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि जुगुतेव मात्मानमत्परायणम। मो ठारे मन टिके लगे दियो, मोर भक्त हो जाओ, मोर आराधना पूजा कर, मोते नमस्कार कर, प्रणाम कर, शरणापन्न हुओ। यही भाव में आत्मा को मोठारे लगाई मोर परायण हेले तुम्हें मते निश्चय प्राप्त हब। एठी श्रीमद् भगवत गीता राजविद्या राजगुह्य योग नवम अध्याय कथा सरीची। सेथिपाई कह जाए, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवम अध्याय। यहाँ पर अधिवेशन रे आपण निश्चित भाव में आमर अन्य आ जो माने आमर वक्ता मान कहिबे, सेतेबेले दशम अध्यायर प्रथम रु आपण मान श्रीमद् भगवत गीता सुनिबे। से तेनु ए अधिवेशन आजिर पाई ये गीतार बाणी की एठी आमे रखी आजिर अन्यान्य कथा को जीवा। से पाखरे सिंहद्वार भिड़ लगिलानी। भगवान को दर्शन करबा पाई भक्त माने भिड़ जमैछंती। चारिआडे गोटे होउचंती भिड़ लागिची।
प्रभुंकर दर्शन करबा पाई महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर विविध लीला तांको लीला को जानिबा सहज कथा नुह। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबु रीतिनीति लीला रही ता भितरे महाप्रभुंकर स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र से आमे जय जगन्नाथ टीवी संक्षिप्त जो कार्यसूची से संपर्क रे टिके आलोचना करिबा एवं से संपर्क रे आलोचना करी आमर कथा वस्तु को आगु नबा। विशेष भाव रे चारियारे सकाल सकाल गोटे आनंदर परिवेश विशेष सूचना जय जगन्नाथ टीवी भक्तों अनुभूति कार्यक्रम सिंहद्वार सम्मुख अरुण स्तंभ निकट में सकाल 9टा अपराह्न 12:30 संध्या 7टार प्रत्येक दिन अनुष्ठित होउची। आमर कैमेरा टीम उपस्थापक उपस्थित रहउचंती तेणु आपण माने अरुण स्तंभ निकट में आम कैमेरा टीम सहित जोगाजोग करंतु। घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे प्रत्येक दिन आपण माने पतित पावनकर दर्शन सहित नरेंद्र पुष्करणी अठरनला नीलचक्र माँ भगवती बाट मंगला श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर चारिद्वार विभिन्न मठ मंदिर बारवाटी नृसिंहकर आलती महोदधि आलती विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर बाहर दिव्य लीला सबू आपण माने जय जगन्नाथ टीवी रे दर्शन देखुचंती। दर्शन करने सहित जय जगन्नाथ टीवी हूँ सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क चतुर्थ चैनल। आउ एक सूचना भक्त बंधु विशेष भाव रे एबे सिद्धार्थ भक्ति चैनल नुआ ना हूँ सिद्धार्थ उत्सव नुआ नुआ भक्तिमूलक कार्यक्रम नुआ नुआ भक्ति गीत आपण माने देखंतु केवल सिद्धार्थ उत्सव चैनल रे। ए तो थिला हमर आजिर कार्यक्रम महाप्रभुंकर ए कार्यक्रम रे जेहेतु ठाकुरंकर दिव्य लीला रही तेणु से दिव्य लीला रे निश्चित भाव होउचंती महाप्रभु आमे ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिबा एवं सानिध्य लाभ करी महाप्रभुंकर दर्शन भी करुचे कारण आपण माने महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जो दर्शन करुछंती से दर्शन होउची स्वतंत्र दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद तेणु महाप्रभु को दर्शन कले आमर निश्चित कल्याण हब कारण से होउचंती सर्वश्रेष्ठ देवता कालिया शांते जहाँकर दर्शन रे आमर कल्याण होता है कल्याण साधित होता है सेथिपाई महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विविध लीला करुछंती। तेबे जाऊ आमे जो कथा आलोचना करथिले सेही अठरनला मध्य आमर दृष्टिगोचर हेलानी एवं अठरनला मध्य आमे दर्शन करुचे। महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला ये होची अन्य लीला जहाँकि अठरनला उपरे छिड़ा हेले प्रभुंकर नीलचक्र भी दर्शन होता है। आमे
ये अठरनला गोटे ऐतिह्यपूर्ण स्थान जो घाटे आसी भक्त मैंने पूर्व काल अपेक्षा करुले एबे तो सुविधा हो गलानी आ से समय ना किंतु अठरनला से ऐतिह्य को बहन कर रखी तेरे तले प्रायतः से दल मध्य सफा होता पुणी पुनर्बार दल हो गलानी संपूर्ण निराकरण व्यवस्था करी गोटे से सुंदर वातावरण मध्य अठरनला को सुरक्षित रखिले निश्चित भक्त मान भावावेग सहित जड़ित अठरनला रही आहरी भल हम आम आशा करवा पर्व होती जिला प्रशासन तरफ तार व्यवस्था करा जिवो कारण या पूर्व अठरनला सफा होता तेबे पतित पावन दर्शन अठरनला सहित आम आज भागवत कथा जहाँकि पूर्व अध्याय तो आम आलोचना करुले सुखदेव परीक्षित को परीक्षा कले बोली कह जाए कारण सुखदेव परीक्षित महाराज को टिके परीक्षा भी मझिरे कले ये हूँ भागवतीर कथा तेबे ये कथाटी है कौन श्रीमद् भागवत दशम स्कंद आरंभ रे सुखदेव राजा परीक्षित को परीक्षा कले परीक्षित 5 दिन गोटे आसन रे बसिले एवं परीक्षित कहले भगवान अन्न कौन मु जल मध्य त्याग करिछि कारण सेते बेलू 5 दिन हेलाणी से भागवत कथा शुणुचंती तेणु अन्न जल सब त्याग कर देइछंती जो क्षुधा तृष्णा जो मो मुनि गलारे मृत सर्प पकाई देइथिली से क्षुधा तृष्णा मते भयभीत करि पारु नाही कारण मु आपण मुखमंडल श्रीहरि कथामृत पान करुछि सेठारे कहउचंती जे कि परीक्षित महाराज कहउचंती जे आपणकर मुखारबिंदर जो श्रीमद् भागवत कथा मु पान करुची ताद्वारा मोर क्षुधा तृष्णा एगुड़िक सब हजि जाऊँगी आ मत किसी भोक शोष हो नाई अनेक दर्शनार्थी मैंने आसिक महाप्रभु को दर्शन कर सब कि कौ जगार सिंहद्वार विविध दृश्य भी आसूची ता मध्य आपण माने देखुछंती तेबे कथार रसपान करुथिबारु भोक शोष हो नाही राजा वचन शुणी सुखदेव बड़ प्रसन्न हेले सुखदेव भारी प्रसन्न हो गले कहले अरे तेबे मु जो कथा कहूची ता हूँ निश्चित भाव में मर्मस्पर्शी बोध हुए हूँ नले ये क्षुधा तृष्णा भूली गले नाई आउ भोक बाधा भी हो नाई राजा सुपात्र वो जिज्ञासु मध्य कारण राजा होचंदी सुपात्र जिज्ञासु से जानिबापई तंकर मध्य प्रगाढ़ इच्छा कथार तन्मयता आसीगले जीव संसार को भूली जाए कृष्ण कथा जगत को विस्मरण कराए भगवान कृष्णकर कथा जगत को विस्मरण कर दिए तेणु कृष्ण कथा देह ज्ञान को भुलाई दिए कृष्ण कथा होचंती महिमामयी यही कथारे लीन मन जगत को भूली जाए संसार संपूर्ण विस्मरणर ओ परमात्मांकर सतत स्मरण ही होचंती मुक्ति कारण संसार को विस्मरण एवं भगवान को स्मरण हेले मुक्ति बाट देखा कथा तथा विशेष भाव रे कथाटी तुमको सदा बेले कौन करे तुम दोषर स्मरण कर दिए कथा श्रवण करी नयनरू अश्रु आसीगले जानिब कथा श्रवणर लाभ मिलगला कृष्ण कथा समस्त को आनंदित दिए कारण से कथा भितर जदि पशिगले तेबे अश्रु पलि आसिब मन भगवान पाद पद्म लगिज तेबे जानिमे कथा सुनिबाटा सार्थक होगा एवं श्रीकृष्ण बालक सहित बालक स्वरूप सहित युवक
କାରଣ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ବାଳକ ସହିତ ବାଳକ, ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକ, ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀ, କୃଷ୍ଣ ଭୋଗୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସବୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭୋଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ, କାରଣ ସେ ଭୋଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ଭୋଗୀ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ଭୋଗୀ ସଦାବେଳରେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 125 ବର୍ଷ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାମକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ଧରାଧାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ହୋଇନାହିଁ। 125 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରସରେ ମାତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ରସ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ରସ ବୈଷହ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ହାସ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଭୟାନକ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ବାଳ ଲୀଳାରେ ହାସ୍ୟରସ, ରାସଲୀଳାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଚାଣୁର, ମୁଷ୍ଟିକ, କଂସ ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ବୀର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯାହାର ଯେଉଁ ରସରେ ରୁଚି ସେ ସେହି ରସ ପାଇପାରିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ହେବ ସେ ତା ପାଇବ। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ରସ, ପ୍ରେମ ରସ। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରସ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରସ ଯାହାକି ଅରସ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ରସ ନୁହଁ ତାକୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଶର୍କରା ଓ ଆଖୁ ରସ ଠାରୁ ମିଠା। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନିମ୍ବ ବା ସାଂସାରିକ ରସ କାହିଁକି ପିଉଛ? ସାଂସାରିକ ରସଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ପିତା ଭଳିଆ। କୃଷ୍ଣ ରସ ହେଉଛନ୍ତି ମିଠା ରସ। ଶଙ୍କର, ସୁଖଦେବ, ଯୋଗୀ, ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ ଏହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ଜଗତର ସବୁ ରସ କଟୁ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆରମ୍ଭରେ ମିଠା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଟୁ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରସ ମଧୁର ନୁହଁ। ପ୍ରେମ ରସ ମଧୁର। ପ୍ରେମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପ। ସେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ ରସ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ରସରେ ବାସନା, ବିଷମତା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମୁଁ ଓ ତୁ ଭାବ ନଥାଏ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ରସରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଓ ମୋପଣ ରହେ ନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେବା ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିବିଧ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଉ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସରେ ପାଗଳ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ଏପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସରୋବର ପାଲଟି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନୟନ ପ୍ରେମାଶ୍ରରେ ଭିଜିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା।
नित्य ब्रह्म संबंध हेउ नचेत माया सहित संबंध हो परीक्षितों परी माया सहित संपर्क छिन्न करी ब्रह्म सहित संबंध जोड़ीदेले 7 दिन भितर मुक्ति मिले। ब्रह्म चिंतन करी करी मरीगले मुक्ति मिल। दशम स्कंद भगवान श्रीकृष्णकर हृदय प्रेम और विरह हृदय को आर्द्र करे तापरे रसानुभूति मध्य हुए। कृष्ण कथा सब प्रकार जीव को आकर्षित करे। साधारणतः जीव 4 प्रकार कारण संसार रे अनेक प्रकार जीव अछंती। आपण माने देखुचंती हमर ये होची बाट मंगलांकर मंदिर विशेष भाव रे बाट मंगलांकर मंदिर पाखरे आमे पहुंचीचे एवं माँ बाट मंगलांकर दर्शन कले निश्चित आमर कल्याण हब। माँ जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जहाँ को दर्शन कले आमर कल्याण हुए से होचंदी कल्याणमयी देवी। भगवतींकर सानिध्य लाभ करी आमे निश्चित भाव रे आमर जीवन को सार्थकता करिबा। तेबे संसार रे तो विभिन्न प्रकार कथा रही। आपण माने देखिबे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीति नीति लीला ये हूँ स्वतंत्र। कारण परमात्मांकर सानिध्य लाभ कले जीवर कल्याण होता है। बाट मंगलांकर प्रत्येक दिन आपण माने दर्शन करुछंती। आज भी मध्य आमे से बाट मंगला मंदिर पाखरे पहुंचीचे। तबे जीव होचंती 4 प्रकार जीवन को देखा मिले संसार रे। कौन ना पामर विषयी मुमुक्षु मुक्त जे अधर्म रे धर्म अर्जन करे और अनीतिपूर्वक उपभोग करे से होची पामर जीव। जे धर्मपूर्वक अर्थ उपार्जन करी इंद्रिय सुख उपभोग करे से विषयी जीव। धर्म रे उपार्जन कला किंतु विषय रे ताको भोग कला। जे सांसारिक बंधन रु मुक्ति पाइबा को इच्छा बा प्रयत्न करे से जीव मुमुक्षु जीव। जेतु कनक और कांतारूपी माया बंधन रु जे मुक्त होई प्रभुंक ठारे तन्मय हुए से मुक्त जीव। राजस तामस और सात्विक सबु प्रकृतिर जीव कृष्णकर कथारे कृष्ण कथारे आनंद पाती। तेणु दशम स्कंदरे 3टी प्रकरण सात्विक प्रकरण राजसिक प्रकरण तामसिक प्रकरण। कृष्ण कथा समस्तंक पाई उपयोगी और समस्त को आनंद दिए। सुखदेव परी जोगी मध्य ए कथारु आनंद पाए। कृष्ण जगत को गृहस्थाश्रम सन्यासाश्रम समन्वय करी देखाई एवं श्रीकृष्ण 16 सहस्र रानी मध्य रही समस्त को प्रेम दान करि पारुथिले। श्रीकृष्ण सबु रानी को प्रेम करुथिले मध्य काहा प्रति आसक्त नथिले। ये होची भगवान कर वैशिष्ट्यता। विशेष भाव रे देवींकर दर्शन होची पतित पावनकर दर्शन मध्य आमे करूचे। तेणु माँ बाट मंगलांकर मध्य दर्शन हो करूचे। प्रत्येक दिन भली जोंठी विकार वासना सेठारे मोह आसे सेठारे प्रेम नाही। श्रीकृष्ण जोगी और भोगी मानकर प्रिय से सन्यासी मानक मध्य रे अग्रपूज्य। श्रीकृष्ण हास्य विनोद अद्वितीय कारण सबुथिरे से अछंती। श्रीकृष्णकर वीर रस महाभारतर अनेक स्थान रे वर्णित। श्रीकृष्ण प्रेम स्वरूप से माधुर्य रस भरा। लौकिक आसक्ति नष्ट हेले अलौकिक कृष्ण रस मिले।
कृष्ण प्रति आसक्ति ही होउचंती भक्ति कारण भगवान को पाखरे आसक्ति आसिले जानिबे सेही गुटिक होउची भक्ति भगवती पाखरे आसक्ति आसिले जानिबे जे भक्ति तेणु देवी बाट मंगलांकर दर्शन तत्सहित पतित पावनकर दर्शन आम करुचे एभली आसिले जीवन सफल हब श्रीकृष्ण लीला हूँ निरोध लीला मन निरोध हेले मुक्ति सुलभ हुए मन संसार जड़ पदार्थ सहित एक रूप हो पारे नाही मन चेतन तेणु मन ईश्वर सहित मिसे परीक्षित मन को सांसारिक विषय हटाई कृष्ण सहित एक रूप करी मुक्ति प्रदान करवा पाई दशम स्कंद श्रीकृष्ण लीला वर्णित कथा जहाँ भक्त को प्रेम पागल कर दे तेणु से कथा सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण चित्त चोर से समस्त को आकर्षित कर पारती सुखदेव होउचंती महाजोगी से कृष्ण कथार पागल हो जाइथिले सुखदेव सर्वस्व त्याग करथिले किंतु कृष्ण कथा को त्याग करि पारि नथिले से निज पिता व्यास को त्याग करथिले किंतु कृष्ण कथा को त्याग करि पारिले नाही सुखदेव परि वैरागी मध्य कृष्ण कथा को छाड़ी पारि नथिले कृष्ण लीला चिंतन कले मन निर्विषय हो जाए भक्त भगवान को सेवारे आनंद पाए भक्त भगवान को सेवारे आनंद पाए से मुक्ति इच्छा करे नाही जोगी समाधि रे बसिथिबा पर्यंत मन स्थिर थाए समाधि भागी गले मन पुनर्बार चंचल हो जाए विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या करथिले किंतु मेनका मायारे पड़गले विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या कर मेनका मायारे पड़गले मायाटा एते होचंती प्रगाढ़ भगवती देवी माँ बाट मंगलांकर दर्शन भक्त मान करुछंती जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु मान घरे रही करुछंती ए पाखरे भगवान श्री पतित पावनकर मध्य बेश श्रृंगार चली कृष्णकर कथा भागवती कथा मध्य आम आलोचना करुचे समाधि दुई प्रकार भक्त बंधु जड़ एवं चेतन जो थे जोगी मन को बलपूर्वक वश करे ताहा बड़ समाधि जार नाम होचंती जड़ समाधि कारण गोटे जड़ समाधि गोटे चेतन समाधि जोगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र रे स्थापित करे यही समय रे तार शरीर जड़ हो जाए जड़ समाधि रे शरीर ज्ञान रहे नाही जड़ समाधि ठारू चेतन समाधि आउरी उत्तम जोगीर समाधि चेतन समाधि जेते बेले हुए से आखि कान खोली कृष्ण को ध्यान रे तन्मय हो जाए से कान आखिरे कृष्ण को बसाई थाए जोठी गोपी मानकर दृष्टि पड़ुला से श्रीकृष्ण को देखुले तेणु जत्र जत्र मनो जाति तत्र तत्र माधव जोठी तांकर मन जाउथिला से सिठी श्रीकृष्ण को देखुले यही हूँ श्रीकृष्ण भाव प्रेम तेणु उद्धवंकर निर्गुण निराकार ब्रह्म कथा सुनी गोपी माने कहिले उद्धव आम तो सर्वत्र साकार ब्रह्म को दर्शन करुचु तुम्हें निराकार ब्रह्म को कारण तुमर जो निराकार ब्रह्म को आम कहीं चिंतन करूँ कारण गोपी माने साकार कृष्ण सहित सी अच्छा सी निराकार ब्रह्म को कहीं चिंतन कर उद्धव खोला आखिरे ब्रह्म दर्शन कर से आखि बंद करी ललाटे ब्रह्म दर्शन करुले आखि बंद करी जी समाधिस्थ हुए से आखि खोलिले तार मन संसार विषय लगी जाए आमे तो कृष्ण को दर्शन चिंतन और ध्यान करुचु गोपी माने गृहस्थ हेले मध्य समान होचंती महापरमहंस
ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଲିପ୍ତ ରହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଗୃହସ୍ଥ ଓ ମହାସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ମହାସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଘରେ ରହି କିପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 13 ଥର ଭୋଜନ କରି 16,000 ରାଣୀ ପାଖରେ ରଖି ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୁବକ ସେ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯଦୁବଂଶ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଥିଲା ଅବିଚଳିତ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ବାତ ରାଗି ଯୋଗୀ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବିତରାଗୀ ଯୋଗୀ। ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। କଥା ମନୁଷ୍ୟର ଥକା ଦୂର କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆତୁରତା ବଢ଼ାଏ। କୃଷ୍ଣ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତୃପ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ମୋର କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣ ତାହା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଳ ଲୀଳା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୀଳା ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସେଇ ସକାଳେ ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଯାହାକି ଆମର ଏ ଭାଗବତୀ କଥାକୁ। କାରଣ ଏ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ କଥା। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଜୀବନ ହଜିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନ ହଜିଯାଏ, ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପାଇଗଲା ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ। ମା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା କାଲାଭ୍ରାଭମ୍ କଟାକ୍ଷୀ ରଡ଼ିକୁଳ ଭୟଦାମ ମୌଳିବଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ରେଖାಂ ଶଙ୍ଖಂ ଚକ୍ରಂ କୃପାଣಂ ତ୍ରିଶିଖମପି କରୈ ହୃଦବହନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରାಂ ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧାଦିରୂଢ଼ାಂ ତ୍ରିଭୁବନମଖିଳಂ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତି ଧ୍ୟାୟେ ଦୁର୍ଗା ଜୟାଖ୍ୟାಂ ତ୍ରିଦଶ ପରିବୃତାಂ ସେବିତାಂ ସିଦ୍ଧକାମୈ। ମା ଭଗବତୀ ସିଦ୍ଧକାମୈ ମା, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଇ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମା ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ହେଉଛି, ପୁଷ୍ପଟିଏ ମଧ୍ୟ ମା ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ତାଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମର ଗତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଦେବୀ ପ୍ରପନ୍ନାତି ହରେ ପ୍ରସିଦମ ପ୍ରସିଦ ମାତ ଜଗତ ଅଖିଳସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାହି ବିଶ୍ୱମ୍ ତମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରାଚରସ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ, ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ। ଏ ଅପୂର୍ବ ଯୁଗ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ୟାଣ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟା ତ ମାମ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତନ୍ମୟତା ସ୍ୱରୂପରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବା, ଭଗବତୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବା, ଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲଟିଏ ଲେଖେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବତୀ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ। ଯେତେ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ
भक्त मान गोटे गोटे पुष्प दे भगवती दिव्य सुंदर रूप को आम दर्शन करुचे। माँ जा देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। से दयामयी माँ से करुणामयी जहांकर करुणा कृपा कटाक्ष सदा सर्वदा मंगल आमर करे। से माँ को आमे चिंतन करिबा, माँ कर शरणापन्न हवा एवं माँ कर शरणापन्न ही आमे या ही प्रार्थना करिबा। माँ प्रत्येक मुहूर्त रे टिके मते कृपा माँ करे, कारण माँ कर कृपा ले सब किछि संभव हो पारे निश्चित भाव रे। तेणु आमे मोर बाणी को मु विश्राम दे श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर सुललित कंठरू यही अपूर्व समय बेश श्रृंगार भगवतींकर एवं भगवानकर चली दिव्य दर्शन करी आमे से दिव्य भजन जहा कि होची भाव भक्तिर भजन को श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।